چلیے ٹھیک. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وسلام. جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی بڑا شکر ہے اللہ پاک کا. جی فرمائیے مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اچھا ابھی تیسری مرتبہ سچ والا صاحب میں آیا ہوں. یہی مسئلہ کرتے ہیں آپ کہ ہمیں آپ سامنے کر دیتے ہیں، خود آپ چھپ جاتے ہیں. تیسری جی مرتبہ فرمائیے. یہی کام کیا. ابھی دیکھیں ایک اور دوست آئے تھے، وہ آپ سے بات کر رہے تھے. اس وقت آپ جناب سب کو آن کرتے ہیں، جب ہم آتے ہیں تو آپ ہمیں سامنے کر کے خود غائب ہو جاتے ہیں. میں نے آن کیا تھا، میں نے کیا تھا. ارے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کا کیا سمجھ دیتے ہیں. جی ان کا جو کیمرہ ہے تو ہم ان کی پوز کو بڑا کر دیتے ہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا جو کر دیتے ابھی ہیں. انہوں نے کچھ اور کہا، ابھی کچھ اور کہا. دیکھیں اچھا، اصل یہ میں ہے آپ کو کہ غلط فہمی لگی. جی سچ والا صاحب آپ ایک کام کر سکتے ہیں. جی بولیے. یہاں پر سکرین کے اوپر ہم دو شخص رہتے ہیں، بقایا سارے پیچھے پردہ چلے جائیں تو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جی تھوڑی سی ٹھیک ہے. گفتگو ہماری ہو جائے. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے بہتر ہے. اوکے جی چلیے بھی ایسی کریں، مفتی صاحب کو رکھیں اور ہم بھی جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے. جی جی مفتی صاحب آپ بھی بیچ میں بھائی آپ سائڈ پہ ہو میں جائیں. اچھا سچ والا کوئی صاحب پردہ نہ رہے سمجھو. اچھا میں نہیں بولوں گا مفتی صاحب، میں آپ کیونکہ کوئی میں مسئلہ نہیں، ایڈمنسٹریشن کوئی میں مسئلہ ہوں، نہیں. آپ میں مینج کر رہا ایڈمن ہوں. ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے پردہ چلے جائیں تاکہ سچ والا سے ڈائریکٹ ہم جو ہے نا بات کر سکیں. چلیے ابھی ٹھیک ہے. آپ عبدالحمید صاحب ایسے ہی جو ہے مفتی صاحب کی خواہشات کو پورا کر دیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی عبدالحمید صاحب، مفتی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے. چلیے جناب جی مفتی صاحب بہت آپ کی شکریہ. خواہشات پوری ہو گئے. جی جی فرمائیے. جی بہتر ہو گیا. سچ والا صاحب دیکھیے پہلی سٹریم میں آیا تھا تو آپ سے ہم نے کہا کہ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجئے. آپ نے کیمرہ آن نے کیا، ٹھیک ہے. دوسری سٹریم میں آئے تو اس وقت بھی آپ کو کہا، آپ نے کیمرہ آن نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. یہ ساری سابقہ باتیں میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جو نئے سننے دیکھنے والے ہیں ان کو سابقہ ہماری ہسٹری جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ اصل کیا تمام پیچھے ہو چکا ہے. پھر آپ کو کہا گیا کہ اپنا نام بتا دیجیے. آپ نے اپنا نام بھی ابھی تک نہیں بتایا. پتہ نہیں اس قسم کی آپ کو کیا مسائل ہیں کہ آپ نہ ہی اپنی کوئی اصل شناخت سامنے لا رہے ہیں، اور جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ اتنے پردوں کے اندر نہیں رہتا. اگر تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اپنا نام بھی آپ نے سچ والا رکھا ہے. اور بڑے اتفاق کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلی جو آئی ڈی تھی اور جس نے جناب ایاز نظامی جو کہ آپ کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، جن کا جو ملحد تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا، تو ان کے ساتھ جو آئی ڈی ڈیبیٹ کیا کرتی تھی پال ٹاک کی دنیا کے اندر، جی تو وہ تھی سچی بات نام کی آئی ڈی. اور سچی بات نام کی آئی ڈی نے کوئی سمجھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر 12-14 سال راج کی ہے، اور وہ عاجز کی آئی ڈی تھی. تو اسی کو یعنی تھوڑا سا آپ نے اس کی نقل سمجھ لیں کر کے تو سچ والا آپ نے نام رکھا ہے. تو لیکن کم از کم یہ تو چلو ایک نک نیم ہے، تو آپ کم از کم ہمیں اپنا نام تو بتائیے کہ تاکہ آپ کو آپ کے نام سے خطاب کیا جائے. جی نہیں، آپ کو اس بات کی شکایت ہے کہ سچ والا پس پردہ رہتا ہے. یہ شکایت کیوں ہے؟ یہ شکایت آپ کو اللہ میاں سے کیوں نہیں ہے؟ جی مفتی یہ صاحب سوال گندم جواب چنا. نہیں، پھر اب آپ نے اصل میں پھر دیکھیے یہاں بات یہ سنیے، اس سوال کی سچ والا ضرورت ہی نہیں ہے نا. صاحب، سچ والا جی صاحب دیکھیے، جی آپ علمی اعتبار سے، جی علمی اعتبار سے علمی دنیا کے اندر یہاں جی جذباتیات نہیں چلتے. جی یہاں بندے کو مجنون سمجھا جاتا ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو،
जी देखिए जो मजनू होता है ना वो बक 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 किए जाएगा, उसकी बक बक का कोई नोटिस नहीं लेता कि यार ये पागल आदमी है, मजनू है बेचारा, तो अच्छा बक बक ही करनी है ना, वो किए जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई लॉजिक होती है, कोई एक जो बात की जाती है उसके पीछे कुछ समझने के कोई इल्म होता है, और इल्मी तौर पे वो इतराज कर रहा होता है, तो वो समझ आ जाती है साहिबाने इल्म को कि ये बंदा कहाँ से जाके बोल रहा है। देखिए इसकी मोटी मोटी मैं मिसालें दे देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो कि अपने अपने चैनल्स बस चला रहे हैं और कमाई का जरिया उनका बना हुआ है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आप का जो कमेंट के अंदर आपने वो सुपर चैट रखी हुई है, आपको लोग डोनेट कर रहे हैं आपके कमेंट के ऊपर, चैनल मोनेटाइज करवाए हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये कमाई का एक जरिया बना हुआ है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा जो है मतलब इस तरह की कमाई जो है, ऐसा इस तरह के चंदा वसूल करना, ये अब मेरी अभी सुन्नत बात रसूल जारी भी तो है, है ना, थोड़ा ये सा अल्लाह और तहम्मुल रसूल भी तो करते थे ऐसा, क्या वो जी गलत नहीं था? जी मैं वो उसकी तरफ आता हूँ। मैं अभी एक बात जी कर रहा हूँ, अभी मैंने अभी सवाल नहीं किया, सवाल अभी करूंगा, जब सवाल करूंगा जी उस वक्त आप जवाब दे दीजिएगा। जी तो देखिए वो मुल्हिद हारिस हैं, पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से, बिल्कुल वो बेचारा इल्मी तौर पे बिल्कुल फारग है, कोई अच्छा लाजक नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई होता है ना कि वो बंदे की गिरफ्त करे, मुसलमानों की गिरफ्त करे, कोई सरफी तौर पे, नाहवी तौर पे, बलागत के एतबार से, मंतिक के एतबार से, फलसफे के एतबार से कोई फन तो कोई बरूए कार लाए ना भाई। अच्छा तुमने गिरफ्त करनी है, अगर साइंस के एतबार से भी करनी है तो कोई मैथमेटिक, कोई जनाब बायोलॉजी है, कोई फिजिक्स है, कोई किसी एतबार किसी कोई फन के अंदर तुम्हारी महारत तो हो कम से कम। कुछ भी जी नहीं। गालब जी कमाल साहब बैठे हुए हैं बिल्कुल फारग, वो चेहरे पे वो भी ओढ़ छड़ देते हैं, आज तक उनका चेहरा वो भी किसी को कम कम लोगों को ही पता है कि गालब कमाल कौन है। मेरे पास तो उनकी ओरिजिनल तस्वीर भी रखी है, तो अच्छा उनकी तमाम मामलात पता है, उनकी असल तक का भी हमें पता है। ऐसे मुल्हिद अच्छा हारिस साहब की भी असल तक का भी हमें पता है, बंदा अच्छा कौन है और अभी कहाँ पे बैठा है ये भी पता है, सारे मामलात। हम्म, अच्छा इस अच्छा तरीके से दसियों चैनल्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनाब कमाई का एक जरिया बना हुआ है कि भाई सिर्फ डोनेट करो हमें, और डोनेशन मांगने के लिए या जनाब कमाइयाँ करने के लिए ये सारे काम करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोतरेज बेबाक होता है, वो इतराज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है करे, लेकिन इतराज के अंदर भी कम से कम कोई वजन होना चाहिए, वो कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई इल्म होना चाहिए। ठीक है। जी नहीं तो इतराज करने वाला तो वो लाख इतराज कर लेना, इतराज ही करना है ना। जब आप मेरे सामने हो तो मैं जितने मर्जी इतराज कर लूं। अभी देखिए आपका ये लोगो मेरे सामने है, सच वाला, ठीक है, तो मैं इसमें तरह तरह के इतराजात कर सकता हूँ कि ये देखिए जी इसमें आपने लाल रंग रखा है तो काला रंग क्यों नहीं रखा, ये पीला जी रखा है तो व्हाइट क्यों नहीं रखा, इसको गोल रखा है तो इसको चकोर क्यों नहीं किया। इतराज ही करना है ना, जितने मर्जी कर लो, तो कोई अच्छा लॉजिक ठीक होनी है, अब हम चाहिए। जो है हम एक सवाल मैं भी कर लूँ ना मुफ्ती साहब? अभी अभी सवाल नहीं, सवाल तो देखिए अच्छा मैं करने आया था कि अभी अच्छा आपके चैनल के ऊपर मैंने जनाब हम्म एक वीडियो देखी है सूरत यूट्यूब, ऐसा जी ही है, जी ऐसा ही है, आपके जी चैनल पे है। जी हाँ है जी हाँ, सूरत यूट्यूब को आप खुद जरा सुनाएंगे। क्यों उस पे लगा है, आप सुन लें, मेरी अपनी आवाज में है। नहीं ये किसने लिखी है ये? भाई लिखने वाले ने लिखी, बोलने वाले ने बोली, पढ़ी, तो उस पर जो थोड़ा भी सा है वो बताइए है। किसने लिखी है ये? भाई जिस किसी ने भी लिखी है तो क्यों आपको इस पर एतराज है? बहुत इतराज है, मैं यही तो अर्ज क्या कर रहा हूँ कि क्या देखिए एतराज इसमें है? कोई लॉजिक, कोई कम से कम कोई लॉजिक होनी चाहिए। इसको एक दफा ये सुनिएगा जरा, अपने अच्छा अपने अल्फाज खुद ही सुन अच्छा, लीजिएगा। कुरान में लॉजिक है? एक कुरान में मिनट लॉजिक है? सुनिएगा ना मेरे भाई, जी सुन तो ले, सुन ले जरा, जी ये मैं लगाने लगा हूँ। अच्छा जी ये क्या बोला इन्होंने? भाई जो भी बोला, तो आप मुझे ये बताइए कि कुरान में लॉजिक है?
देखिए कुरान नहीं, अभी देखिए ये आपका चैनल है, ऊपर आपने लिखा भी है सच वाला के साथ बराह रास्त मुकालमा, ये आपने कहा है ना, आप लिखा है जो ना, है यूट्यूब तो की सूरत की जो एक है मिनट सुनिए किसी ना, एक आयत ऐसे में नहीं, आप लॉजिक जो ऐसे है नहीं कि सवाल पलट कर रहे के हैं, तो मैं हम सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप पलट के मेरे ऊपर सवाल कर दें। नहीं, बात यही है ना आपकी ये कि सूरत जब आपकी जब बनाई हुई आपको सूरत है, कुरान में कम से लॉजिक कम आप ये समझाएंगे ना जी, कम हमारे से कम हमें मुफ्ती समझाए साहब तो सही ना, ये सूरत तो यूट्यूब है क्या, इसके नहीं, सरफी ठीक नहवी है, तौर पे आप हमें बताइए, नहीं ठीक है, ला हम यही उक़सिमु जानना चाह रहे हैं। बिहाज़ल यूट्यूब ये है क्या, ये कौन जी, सा जी, सेंटेंस है, कौन सा जुमला जी, है, इसकी कोई हम यही तो तरकीबे आपसे नहवी जानना की चाह रहे हैं, है, आप तशरीफ तो लाए मुझे हैं, बताइए तो आप सही। तशरीफ लाए सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं चले कि 1 मिनट कुरान गुफ्तगू में मैं कर आप लेता हूँ, 1 लॉजिक मिनट आप साबित कर कर लें, दें, तो उसके 1 मिनट बाद कर जो है लेते हैं। सूरत उल यूट्यूब पर भी जो है उसकी लॉजिक भी साबित कर दी जाएगी। भाई इधर देखिए, ये जी, पहले आई है, ये आपके जी। चैनल के ऊपर पहले आई है, तो कम से कम देखिए इसका तो कुरान तो जवाब पहले आया है ना, इस बात बाद में जो है यूट्यूब बना, कुरान पहले आया है ना, तो पहले जो आया भाई उस पर देखिए बात कर लेंगे। कुरान को हाँ, तो आप कुरान मानते ही नहीं ना, ये नहीं मैं कम से कम ये तो आप सूरत यूट्यूब को यूट्यूब को मानते तो आप हैं, मानते हैं आप ना, ये आपके घर की सुनिए चीज है, सुन लीजिए। कुरान को तो आप मानते नहीं क्या है। आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप सूरतुल यूट्यूब को मानते हैं? मैं नहीं मानते हैं मानता। आप? तो ज़ाहिर बात है, इसी तरह से हम कुरान को नहीं मानते। तो भाई फिर इधर मसला क्या देखिए, है भई? ये तो वही नहीं, बात हुई आप कि भी नहीं मानते, हम भी नहीं मैं मानते ना। आपके बारे में जी। सवाल करूं, आप अपने इनकार कर दें, मैं अपने आप क्यों नहीं ज़ाहिर मानता। ये देखें, हम जो है पहले कुरान पर बात करेंगे ना, भाई सूरतुल यूट्यूब आपकी पर बाद जात में के बात मुतल्लिक करेंगे। मैं अगर सवाल करता हूं तो इसका मतलब अपनी जात से इनकार आप कर नहीं, नहीं, देंगे, नहीं ज़ात मैं की बात अपने आप नहीं क्यों हो नहीं रही। मानता। नहीं, हम ज़ात की बात नहीं कर रहे हैं। सूरत हम आपसे यूट्यूब ये आप मुझे जानना चाह बताइए रहे ये हैं कौन सा मुरक्कब है। भई, हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो है नहीं आपने कुरान बताना, पर लिखी आपने, कुरान में मैंने तो अगर नहीं कोई लिखी। लॉजिक है, भाई लिखी आप तो लॉजिक आपने है है, ना, मैंने तो नहीं लिखी। नहीं सुनिए, ये आप पहले कुरान की लॉजिक साबित सूरत कीजिए ना। यूट्यूब ये कौन सा मुरक्कब है, आप बता दीजिए। आप भाई सुन आप बड़ी बड़ी लीजिए। बातें करते हैं ना कुरान के ऊपर, जब अरबी भई आपको आती कुरान नहीं तो है, आप मानते हैं नहीं ना, सच आप वाला कुरान जी, की लॉजिक मुफ्ती साबित कर साहब दीजिए। ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी ना, मैं इसीलिए बैठा हूं ना, आप आपस में बात कर सके, डायलॉग हो सके ना आपस में। सच वाला जी भी बोले अच्छा जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं। आप सालिस के तौर पे अब्दुल हमीद साहब आप मौजूद रहिए और इंसाफ से काम लीजिएगा, ठीक है। जी लेकिन जो सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ, इनसे जवाब आप ही ले दें। मैं जी इनसे जी जी इनको कह ठीक। रहा हूँ कि देखिए सूरह यूट्यूब आपने लिखी है, तो भाई ये मुझे समझा दें। आप समझते हैं कि ये मुसलमान सामने है, इसको नहीं पता, ठीक जी है, सच मुझे वाला नहीं जी, पता, आप समझा दीजिए, ठीक है सच ना। वाला जी, ये सूर्य यूट्यूब किसने लिखी है और इसके ऊपर क्या एतराजात है मुबशिर शाह साहब को, आप उसके जवाब दीजिए ना। नहीं, हम यही बोल रहे हैं कि जो है मुझे कुरान पर एतराज है, तो पहले ज़ाहिर बात है कुरान पहले है या सूरतुल यूट्यूब पहले है? जो पहले है उस पर पहले बात होगी ना, अच्छा, ऐसा पहले ऐसा उस पर करते बात हैं होगी ना। मुफ्ती साहब और सच वाला जी, आप जी। दोनों पहले तय कर लीजिए कि किस उन्वान पे आप बात करेंगे, फिर दोनों को 2-2 मिनट दे करके हम आगे चलेंगे। बात सुने, ठीक है। जी, उन्वान तय हो मुझे जाए ना मुफ्ती साहब आपका पहले। देखिए अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये भी कबूल है, जी, ऐसा कर लेते हैं कि एक इतराज ये कुरान की आयत के ऊपर, एक आयत के ऊपर, ठीक है, जी, एक आयत जी के ऊपर कुरान का इतराज ये कर लें, एक जी, आयत के ऊपर इनकी एक आयत जो इन्होंने बनाई है घर में बैठ जी, के, मैं जी। इतराज हाँ, कर लूंगा, ठीक है चलेगा, जी। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ठीक है कर सच लेते वाला हैं। जी। ठीक है, असल में जो है यानी मुफ्तियान किराम के नज़दीक कुरान की सूरतें जो अल्लाह ने बनाई हैं और जो सचवाला ने सूरतें बनाई हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसी वजह से कंपैरिजन हो रहा है, ये जो मुआजना हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि एक तरफ एक फरीक अल्लाह मियाँ की बनाई गई सूरतें हैं और दूसरा फरीक सचवाला की बनाई गई सूरतें हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों की कुश्ती हो रही है, दोनों की जो है दोनों का मुसारा हो रहा है, दोनों की कुश्ती हो रही है कि इन दोनों में जीतेगा कौन, अल्लाह मियाँ जीतेंगे या सचवाला जीतेंगे। सवाल ये है, क्योंकि दोनों की बनाई गई सूरतों में मुआजना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है अब्दुल हमीद साहब। अच्छा बात तो सुने, यहाँ एक मिनट, जी सच वाला साहब, बीच में अगर हमारे मुकद्दसात की आप कोई रत्ती बराबर भी तौहीन करेंगे तो जी फिर मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकूंगा, ठीक है। नहीं तो मुफ्ती आप साहब, अगर आप चाहते हैं, इत्मीनान अगर रखिए, आप अब्दुल हमीद साहब आप गुस्ताखी एक मुंसिफ या के तौहीन तौर नहीं पे, होगी। एक मुंसिफ के तौर पे आप बैठे हैं, तो ये इनको पाबंद कर दें कि अल्लाह ताला हमारे अंबिया और रसूल और हमारी जो मुकद्दस किताब है, बल्कि जितनी भी इल्हामी कुतुब हैं, रत्ती बराबर भी कोई इन मुकद्दसात के ऊपर
तौहीन का मुझे कोई उनसर मिला, मैं बिन बताए यहाँ से चला जाऊंगा, फिर मैं ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अच्छा, लेकिन जो अब चीज इन्होंने जो बात इल्मी तौर करनी पर थी है। कर ली है। अच्छा सुन लीजिए अब इन्होंने जो बात कर लिया, मेरा टाइम है ना, अब मेरा टाइम है, मैं बात कर लेता हूँ। बोलिए 2 मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है, ऊपर टाइम के ऊपर मेरी नजर है। 29 मिनट पर मैंने गुफ्तगू शुरू की है और 31 तक मैं अब बोलूंगा और आप जी लोग ठीक है, तवज्जो बोलिए। से सुनेंगे। जी सर, प्लीज। ये तस्वीर बड़ी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, टाइम पता चल गया मुझे, वो काउंटर मेरे सामने चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। नहीं, मेरी तस्वीर नहीं, तीनों बंदे ही रहे, ऐसा नहीं कर रही, ऐसा ज्यादती नहीं, बंदे तीनों ही रहेंगे। जी शुक्रिया। ठीक हो गया। अभी तक इन्होंने अपने टाइम के अंदर तो कुरान के ऊपर कोई आयत पेश की नहीं है, तो मैं कर देता हूं। इनकी ये सूरत है, सूरत यूट्यूब। पहले तो ये लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए, लिख लीजिए कि इसके मुरक्कब के बारे में मुझे बताना है, ये मुरक्कब कौन सा है। दूसरा सवाल, ये अल यूट्यूब के ऊपर जो अलिफ लाम है, ये कौन सा है। तीसरा सवाल, ये ला उक्सिमु बिहाजल यूट्यूब, ये ला कौन सा है, उक्सिमु कौन सा सीगा है, बिहाजा मुरक्कब है कि मुफरद। मुरक्कब है तो इसके अल्फाज की वजाहत करें। ठीक है, ये सारे सवालात हैं जो सिर्फ एक आपकी सूरत की समझ लें कि पहली जो आयत है उसके मुतल्लिक मैंने ये सवालात किए हैं। मुफ्ती साहब, अभी चुप भाई, ऐसे इंसाफ कम अज कम, आपको मुंसिफ मैंने बनाया है, ऐसे तो चम्मे तो ना मारे। नहीं मुफ्ती साहब, पहला सवाल वो पूछेंगे ना। 31 मिनट पर मैं आप माइक छोड़ूंगा, उससे पहले आप बोल नहीं सकते, चुप करके बस। अच्छे इंसाफ करते हैं आप लोग। मैंने पहले कहा था कि मुलहिद जो होता है वो तो इंसान ही नहीं होता, इंसानी मियार के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। वो उसका सबूत दे दिया ना आपने, दे दिया ना, फिर दे दिया सबूत। पहली 2 स्ट्रीम में भी ऐसे ही हुआ था। अभी मेरा टाइम ये खत्म हुआ, बोले। जी मुफ्ती साहब, टाइम खत्म हो गया। जी जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा में ये ला उक़सिमु क्या है? ये ला उक़सिमु है या ला उक़सिमु है? जी मुफ्ती साहब, ये मेरा सवाल है। मेरी आवाज आ रही दोस्तों? मेरा सवाल जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल इतनी था। मैं अपने टाइम से पहले बोलूंगा नहीं, 2 मिनट पूरा कीजिए और मेरे सवालों को जवाब दीजिए। नहीं बस मेरा सवाल इतना ही है ना। आपका हलक अभी खुश होना शुरू हो गया है, आवाज अटकनी शुरू हो गई, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। अरे मेरे जनाब आली, मैं सवाल करूंगा कुरान पर, क्योंकि कुरान पहले आया है। तो जो आपके ऊपर सवाल करेगा वो उसका जवाब कोई नहीं देंगे आप। जाहिर बात है, जो है मैं तो बाद में आया हूँ ना, पहले कुरान आया है ना, पहले कुरान आया है, कुरान के पहले सवाल होगा। पूरा कीजिए, जवाब दीजिए। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान पहले आया है। मुफ्ती साहब, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों का पहले उन्वान तय हो जाए तो फिर 2-2 मिनट में मजा आएगा। अब आपने 2 मिनट कह दिया, आप सचवाला जी कह रहे हैं कि सवाल पहले मैं करूंगा, तो सवाल किस पर होगा? यूट्यूब पर पहले होगा या कुरान पर पहले होगा? आपका क्या मानना है मुफ्ती साहब? जी मुफ्ती साहब, जवाब देना चाहिए ना। पहले वो जवाब देंगे या पहले आप जवाब देंगे, ये तय नहीं हुआ। और आपने 2 मिनट में सवालात पूछ लिए। अब सचवाला जी कह रहे हैं कि आप पहले कुरान पे सवाल का जवाब दीजिए। चले जी, बस अब नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अपने टाइम में मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा और आपके टाइम के अंदर मैं नहीं बोलूंगा। जो उसूल है उसूल रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इल्मी औकात आपकी ये है, हाँ जी, अपनी आयत तो खुद ही लिख के, खुद ही पता ही कहानी में लिखिया की है, और इतराज उठ के करने चले हैं कुरान के ऊपर, कुरान की अरबी के ऊपर। पता है कख नहीं आपको, 1 नंबर के जाहिल मुतलक हैं आप, सच वाला साहब, समझ आई कि नहीं? मुफ्ती साहब, सच वाला यार, चुप यार, एक चुप कर जो, नहीं नहीं, मैनू कह दियो मैं टल जाना वा।
ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, सुनो सुनो सुनो, बाबा जी, बाबा जी, अपने ओ बाबा जी, सुनो सुनो, ओ बाबा जी, सुन 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 बाबा जी, बात सुन। ये जो है ना 2-2 मिनट में बैठूंगा, 3-3 मिनट में बोलूंगा, और बोलने के साथ साथ जो है ना मैं बकवास करूंगा। तो बात इतनी है बाबा जी कि पहली गढ़ सुन। पहली गढ़ ऐसी कि पहले कुरान आया सी, सच वाला सर की आयत बाद में आई सी, समझा बाबा जी। तो पहले जो है ना तू दस, सच वाला सर ने जो सवाल पूछा तू दस, और यहाँ आके बदतमीजी करेगा ना तो तू और तेरे चेलों के लिए असी बैठे हैं इधर, समझ गए बाबा जी जी सर, मैंने जो है 2 दाढ़ियों में तिनका देखा, एक चोर की दाढ़ी में और इसकी दाढ़ी में। और इसकी दाढ़ी में मैं सिर्फ तिनका ही नहीं देखा, मैंने जूं भी देखा इसकी दाढ़ी में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो जूं जो है ना, इसकी दाढ़ी का जूं, जब ये अपनी बहन या बेगम से जब बोसा लेता है, क्योंकि कजन मैरिज अलाउड है इस्लाम में, जब ये बोसा लेता है तो जरूरी है कि इसकी जो बेगम की खुराक है इसका जूं ही है।